Hello. I think we should start. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Yes, I think here only नायडू जी हैं और sir. गोकुल राहुल. अच्छा गोकुल राहुल आप पहली बार आ जाए हैं क्या क्लास में, मुझे लग रहा है, या पता नहीं. गोकुल जी. No, sir, I joined the earlier also. ओके ओके फाइन. ठीक है. तो आज जो है आपका ये सेकंड वाला है, तो जिसमें कि we'll be learning about some of the remote sensing based image interpretation. ठीक है. तो जो इमेज जो मिलता है सैटेलाइट से, तो उसको कैसे पढ़ना है और कैसे उसको स्टडी करना है और उससे कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, ये बेसिकली उसका फंडा है. सो in our last week, I can say, we have discussed mostly about the application part of geoinformatics, but we have not captured about the topic of remote sensing. Okay, so course is designed in such a way here. Whether my slides are moving, sir. Moving, sir. Moving, sir. Okay, fine. So here in this particular this is divided into different block, like introduction to remote sensing in block 1. Then in block 2 we are going to study about the sensor, different platforms, and about resolution also, what type of different types of resolution. Then we're going to discuss about some space program by India. Also, we're going to discuss about some global space program, like the leading organization like NASA, European Space Agency, Japan Space Agency, and some others are there, Chinese Space Agency, like that. And in block 2 again we will be studying about remote sensing data product, what are the products are available in remote sensing along with its format, right? Then in the third phase or third day we are going to discuss about the uh, visual image interpretation, means देख के, by seeing in our eye, how we are going to have the interpretation, और what are the interpretation keys, क्या क्या कीज होता है जिसको देख के हम इंटरप्रिटेशन करते हैं. तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे. उसके बाद मान लीजिए यू हैव interpreted something as a forest, but in reality that is not a forest. Suppose that is a scrubland, right? So in that case we have to go for the ground truth collection verification. So again we are going to study about some ground truth collection. Then finally we are going to have some digital image interpretation, like uh, it is designed in such a way that we'll be having knowledge on not only visual interpretation but in digital image interpretation, where we're going to study some of the techniques or methods. Then some पोस्ट क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होता है. सो दिस इज डिजाइन इन दिस 4 blocks. Okay, so in this 4 day, so let's start for today. So today that we should know what is a remote sensing. So anyone, any guess or any ideas? So what is a remote sensing actually? Can you anyone explain? कुछ भी मतलब आपको आता है बोल सकते हैं. Sir, without going to the site, from remotely you can collect the information of geographic area. Will be called a remote sensing, sir. Exactly. Without it is nothing but we can say a art and science, or maybe a technique where without having a physical contact, if we are able to capture or gather information about an object or about Earth surface feature or Okay. different other things that is available on the Earth,
So that technology is known as remote sensing, and it is a remotely sensed data, like whatever we are having different satellites, it can be, the data can be captured through satellites, it can be captured through some other vehicles like unmanned aerial vehicle like drone, right? And also by using a simple camera also, we are Yes, sir. able to get the Collect the data, information. Yes. right? So my question is that whether our eyes are considered as a sensor or not. Sorry, sir. our eyes, हमारे जो आँख है ना, whether human Sir. eyes can be considered as, It also sensor, sir. yes. Yes. Yes, sir. So whatever like the light is just having some incident in the any object जो हम देखते हैं ना, तो again that energy is reflected, yes, Refer and to we a are, right side. Yes, sir. right. So it is as simple as that कि in our eyes, as without having a physically उसको टच नहीं करके भी we are able to know that what is it. So Identify the object. Yes, sir. right. So Yes, sir. that is the science behind remote sensing. Okay. Remote sensor. So now thing is that remote sensing are of different type. Okay. So very first one is like it is a passive remote sensing. That means where the source of energy is the sun. ठीक है. So sun's rays is coming towards earth, and uh, it is when it is having a like at the time of like from sun to earth, at the time of its journey, we have a very thick layer of atmosphere, right? We're having troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, like that. And in that atmosphere, several uh, gases are there, water particles are there, so many things are there, right? So in their journey, the sun rays, it gets sometimes scattered, or it gets sometimes emitted, like that. And finally when it reaching to the earth's surface, after having after reaching, or after reaching the target, again that particular rays, it is reflected back to the uh, atmosphere. And we are having the satellites, okay, earth के ऊपर हमारा satellites है, तो that energy is being captured by the our designed satellites through its equipped sensor. सैटेलाइट्स में कुछ सेंसर लगे होते हैं, तो वो एनर्जी को वो कैप्चर करते हैं, ओके. देन दे सेंड दोज डेटा और दोज एनर्जी सोर्स टू आवर अर्थ, and that data is received by some design receiver or antennas that is located in some specific location, right? Like in your Andhra Pradesh, in Sadhanagar is there, which is close to Hyderabad. Uh, we are having Sadhanagar is there. It is around around I think 30 to 40 kilometers away from main NRS, city. yeah, the main city. So आप कभी अगर if you get an opportunity, must visit that area. You will be thinking that you are in a different world. मैं खुद गया हूँ, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे. आपको पूरा लाइव दिखाते हैं कि सैटेलाइट्स का कैसे मूव हो रहा है, उसका कहाँ पे है अभी, और सैटेलाइट इमेज को डाटा कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, तो एवरीथिंग आप देख सकते हो अंदर जाके. ठीक है. तो ये एक बेसिक फंडा है कि आपका रिमोट सेंसिंग में क्या होता है क्या नहीं. अभी क्या है, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल कि प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है. देन आपका EMR के बारे में पढ़ेंगे. इन प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग में वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, तो हम कर चुके हैं. देन व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन, वी नो इट वेरी वेल कि उसका क्या एडवांटेज है. we'll also discuss about some history of remote sensing. फिर हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ मॉडल्स हैं, देन कुछ लॉज हैं,
बट देखते हैं टाइम क्या परमिट करता है। तो ईच एंड एवरीथिंग ये सब पूरा डिटेल में पॉसिबल भी नहीं है, और अच्छा, जस्ट इसको हाँ जो कैची है जिस प्रोफेसर। हाँ जो रिक्वायर्ड है, और आप लोग इतने प्रोफेशनल हैं तो सारा चीज़ एक एक जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जैसे ये डेफिनेशन किसने दिया है, क्या है, ये सब लेलिसन कीपर का क्या डेफिनेशन है, साविन्स ने क्या दिया है, कैम्पबेल ने क्या दिया है, आप लोग ये देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना आप। देन यहाँ पे दिस पर्टिकुलर दिस इमेज और दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इमेज जो है, इमेज बोल रहा हूँ, ये जो डायग्राम है ये प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग है का है। उसमें क्या है, लाइक सन इज डिनोटेड इन ए, राइट। सो यू कैन सी एन एरो, जो मैं आपको बताया था ना वही चीज यहाँ दिया गया है, ठीक है। सन रेज इज कमिंग टू द अर्थ, देन बी में थोड़ा सा वी आर हैविंग सम इंटरेक्शन इन द एटमोस्फियर, देन सी सम सी में क्या है आपका अर्थ का सरफेस फीचर्स है, सो इंटरेक्शन ऑफ EMR विथ अर्थ सरफेस फीचर्स। देन डी में क्या है आपका सैटेलाइट्स है, सो दैट एनर्जी इज डिटेक्टेड बाय द सेंसर। देन ई में क्या है, इट इज कमिंग बैक टू द एंटीना और द रिसीवर, Yes, है sir. ना। Receiver. Yes, then after having some processing in F, we are having processing and utilization of data. Then आप देख सकते हो एक इंडिया का मैप बनाया गया है, so that is the output. Okay, so this is the basic principle of remote sensing. कैसे, how it operates, it's all about this. Okay, now when I talk about advantage, uh, there are so many advantage of remote sensing are there, but uh, it is cost effective most of the time when data collection is concerned. Because see, for example, if uh, if I am in a very city area, my office is there, but due to some flooding situations are there, or maybe some forest fire or something like that, in a very remote area. So in that case, if we are going to have the data, then definitely it is remote sensing data or satellite images are very useful. Then it can provide in wavelength beyond the sensing capability of human eye. This is very important because see, whatever we can see, that is actually the range is like invisible 0.4 to 0.7 micrometer. So beyond that, we the human being we cannot see. Like कैसे बताए, जैसे सपोज कुछ बिल्ली या कुछ एनिमल्स दे कैन सी इन डिफरेंट वेवलेंथ बट वी कैनॉट सी, लाइक so but with the help of remote sensing we can see beyond our limitation. That means the infrared, the microwave and near infrared, ऐसे बहुत सारे बैंड्स हैं और वेवलेंथ्स हैं, so उसमें भी we can get the data. Okay, then as I already told, in inaccessible area we can have the data sets. और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है जो कि वी आर एबल टू हैव द हिस्टोरिकल डाटा सेट्स. अभी फॉर एग्जांपल इफ समवन बिलोंग्स टू हैदराबाद एंड he or she wants to have some urban sprawl kind of things, urban sprawl kind of research, someone is interested, then they can take the imagery of 2025 as a recent, and they can go back up to like 1970 satellites images are there provided by the Landsat series of NASA. So 1972-73, what was the condition of your Hyderabad city, and in course of time for each 5 years or 10 years we can have the satellite imagery, and based on that we can go for different type of analysis, that how in the changing time how the particular सिटी हैज़ बीन इवॉल्व, और कैसे उसका ग्रोथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा चीज़ आप ना यू कैन स्टडी थ्रू रिमोट सेंसिंग. ओके, नाउ
while talking about history of remote sensing, just कि 1850-60 उस टाइम में थोड़ा सा बैलून फैलून ये सब करके ये धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था। मैं ये और आई एम लिविंग दिस, आप देख लेना फिर 18 में कैसे हुआ था, ऐसे धीरे धीरे जो भी है अप टू फिर इंडिया का दिया गया है, कब सैटेलाइट का क्या लॉन्च किया गया था, क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा विल बी डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एक ये होगा, जस्ट ए सेकंड, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस वन, सी दिस इज अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विथ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों दिया गया है। तो लाइक शॉर्टर वेवलेंथ यू कैन सी इन द लेफ्ट हैंड साइड, कॉस्मिक रेज, वाई रे, एक्स रेज, अल्ट्रा वायोलेट। ठीक है, दीज आर वेरी स्मॉलर वेवलेंथ and for remote sensing it is of no use, but like ultraviolet, x-rays, these are useful in medical science, right? Yes, sir. We use it, but from visible you can see, again visible is like classified in different other in some smaller category like 0.4 to 0.5, blue, green, red. Okay, so blue, green, red, these are some further classification of visible range where our naked eye can see it. Okay, then after visible we are having near infrared, then mid infrared, then thermal infrared. These are very important in vegetation study. Okay, then there is a big range of microwave, from thermal IR to microwave. You can see that is they are very longer wavelength. So and after that we are having your television and radio waves are there. They are very very larger. Okay, so now see different bands or wavelength, they are having actually different type of application. For example, I am giving like in optical remote sensing, where we are only utilizing or the sensor they are developed to capture data in a visible range only. See, actually earlier when remote sensing it was not developed to the form that it is now in the current form. So at that time basically we are unable to have information about this other like thermal infrared and IR, NIR, then microwave and all. But in course of time now you will be you will be knowing, you will be surprised after knowing that nowadays different spectral bands are also there, number of bands are there. So it is very useful in like minerals detection, mineral based study. Those different bands, different spectrals, more than 100 number of bands are now we can have the study. ठीक है, अब ये जो लॉज है ना, आप जस्ट देख लीजिएगा क्या मतलब लॉज में क्या, बहुत सारे लॉज है, किसने ये बोला है वो बोला है, और हाँ, बट बेसिकली आपका प्लांक्स रेडिएशन लॉ एक इम्पोर्टेंट है, और आपका विलेन एंड लाइक स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ आप लोग देख लेना है, क्रिस-क्रॉस लॉ। ये कंसल्टेंट 1 आवर 2 आवर में ये टाइम वेस्ट होगा और कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे अगर सारा चीज़ को पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो आई एम लिविंग दिस। अब नेक्स्ट, हाँ, अभी क्या है इंटरेक्शन ऑफ EMR। अभी हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि EMR क्या होता है, क्या है, और हम लोगों को 0.4 से बियॉन्ड हम लोग वी आर वर्किंग ऑन दैट कि आपका विजिबल रेंज, इंफ्रारेड, IR ये सब में क्या होता है, देन माइक्रोवेव में। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि व्हेन द साउंड्स एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स अर्थ, so in their way they are having different type of interaction in the atmosphere. तो हम लोग are going to study about some refraction, scattering, absorption, और फिर जब ये जो 3 है ना आपका refraction, scattering and absorption, it happens in the interaction process of sun rays in the atmosphere only. Then while reaching the earth surface features, some other
things happen, like reflection होता है, then transmission होता है. Okay, then some different technologies are there, like radiant energy है, radiant flux क्या है, और ये albedo क्या होता है, radiance क्या होता है, तो इसके बारे में हम we are going to study. और those who are having geography background, वो लोग पढ़े होंगे पहले से ही, स्कैटरिंग फैक्टरिंग वो पढ़े हैं. जिनका नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप देखिए ये क्या है, सन एनर्जी आ रहा है तो सम पोर्शन आर लाइक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, देन कुछ रिफ्लेक्शन होता है, कुछ स्कैटरिंग होता है. सो देयर इज ए स्टडी दैट अगर सन का रेज 100 आ रहा है तो जब वो आपका अर्थ तक पहुंचता है ना, तो आई थिंक इट्स 22, इफ आई एम करेक्ट, 22% ही पहुंच पाता है. तो आप सोचो, in that 22% again it is going back to the satellites, then satellites उसको कैप्चर कर रहा है. तो आप सोचिए कितने कम अमाउंट ऑफ डेटा हम रिसीव कर पाते हैं. ठीक है, तो ये आप कुछ बात आप याद रखिए कि रिफ्लेक्शन होता है, आपका स्कैटरिंग होता है, एंड अलग अलग प्रोसेस होता है. स्कैटरिंग हो गया आपका, फिर वो माई स्कैटरिंग वगैरह बहुत सारा चीज़ है. तो रिले स्कैटरिंग इतना ये है, रिले स्कैटरिंग है, तो इसको आई थिंक स्किप करना चाहिए, बट नहीं तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. माई स्कैटरिंग है, ऐसे डिफरेंट नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग आप देख लेना बाद में. और फिर ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जो रेज आता है ना, सन रेज, वो कुछ ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में कि समा जाता है उसके अंदर, ऐसा इस टाइप का कुछ है. तो दैट इज ऑब्जर्वेशन. So basically if we talk about this, then out of 100 around 22% तो ही पहुंच पाता है. ओके, देन एनर्जी अर्थ इंटरेक्शन, जैसे एटमॉस्फेयर के बाद व्हेन इट रीचेस द अर्थ सरफेस, तो यहाँ आप देख सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सन एनर्जी इज कमिंग, देन आफ्टर रीचिंग एट द टारगेट इट इज हैविंग सम रिफ्लेक्शन, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ स्कैटर्ड होता है, क्योंकि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर टारगेट. टारगेट क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ फॉरेस्ट एरिया है तो उसका रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग डिफरेंट होगा, और अगर आपके पास कुछ वाटर बॉडी है उसका अलग होगा, मेटल बॉडी है उसका अलग होगा. तो अलग अलग जो फीचर्स होता है अर्थ के ना, वो सबका अलग अलग रहता है. ठीक है, ये सब थोड़ा सा आप माइंड में रखिए. देन हाँ, ये एक एग्जांपल है, जैसे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग में देखिए, एक एनर्जी आ रहा है तो कुछ कहीं पे स्पेकुलर रिफ्लेक्ट हो सकता है, कहीं पे आपका परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्ट हो सकता है. मतलब अलग अलग टाइप का एनर्जी जो है, एनर्जी जब या हाँ आपका अलग अलग जो बेस्ड ऑन योर डिफरेंट फीचर्स दे आर हैविंग डिफरेंट. ये बहुत मतलब नेचुरल सी चीज़ है कि जैसे वेरी सिंपल है कि एक फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया का टेम्परेचर जैसा रहेगा, उसका बनावट जो है ना, उसका जो क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, इट टोटल डिफर्स फ्रॉम ए रिवर, राइट. रिवर पानी का जो है इट टोटल डिफर्स फ्रॉम ए लाइक बैरन लैंड. इसीलिए एंड ऑल्सो सम अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वन माउंटेन इज देयर और स्लोपी माउंटेन इज देयर, राइट. तो जो स्लोप है ना, तो वो स्लोप है तो उसका जो अपर एरिया जो है वो जितना एनर्जी उसको मिलेगा तो नीचे वाला कम मिलेगा. और मान लीजिए जो स्लोपी लैंड है तो वो वहाँ आपका अगर एनर्जी गिरता है, जैसे सनराइज गिरता है, तो उसका जो है रिफ्लेक्शन अलग होता है, ये वेरी करता है, राइट. तो हाँ, इसको मैं और थोड़ा स्किप कर रहा हूँ आगे. ये रेडियंस पीडियंस इसको छोड़ दीजिए. अभी ये थोड़ा सा अल्बेडो क्या होता है थोड़ा देखिए. अल्बेडो में जो हम बोलते हैं ना कि अभी जो मैं बोल रहा था कि इतना अमाउंट आता है, फिर वो अमाउंट मतलब होता है. हाँ, ये इसको ही मोस्टली वी कॉल इट अल्बेडो. तो डिफरेंट आपका जैसे फ्रेश स्नो जो है ना, फ्रेश स्नो में हायर अल्बेडो होता है, मतलब वहाँ पे अराउंड 75 to 95% ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है. बट आपका और कुछ चीज़ होता है जिससे उससे आपका अल्बेडो बहुत कम होता है, जैसे 5 to 10% में भी आपका डार्क सॉइल होता है. ठीक है,
ब्लैक कॉटन सॉयल, इस सब में क्या है, रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है और इसको हम लोअर एल्बेडो बोलते हैं। तो वहाँ कम एनर्जी जो है ज़्यादा वो कैप्चर कर लेते हैं, एनर्जी इतना उससे रिफ्लेक्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट समथिंग दैट यू शुड नो। और थोड़ा थोड़ा ही आइडिया आपको होना चाहिए इसमें कि क्या होता है क्या है। ज़्यादा अगर पढ़ना है तो आप आराम से आगे भी पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, जो भी है। अच्छा, तो यहाँ तक जो हम अभी अराउंड हाफ एन आवर में जो डिस्कस किए, तो यहाँ आई एक्सपेक्ट कि अगर आप लोग कुछ एक इंटरेक्शन होना चाहिए कि कुछ कोई किसी को कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं, और या फिर कुछ पर्सनल भी है, अगर समथिंग इज लाइक कि जैसे आई थिंक 1-2 days बैक someone having some stress about IGNOU exam like that. आप में से आई एम नॉट गोइंग टू टेल हिज और हर नेम, बट ऐसा भी अगर किसी का इशू है तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे क्या है। तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी देन आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल गाइस, राइट। किसी को कैसे एग्जाम होगा, किस टाइप क्वेश्चन आता है, कैसे प्रिपेयर करना है, उस टाइप का भी। दोज हु आर न्यू स्टूडेंट, लाइक सपोज समवन has got admission after his or her graduation or maybe PG like that. So those students, fresh students, they always go with this type of stress and all. So nothing to be worried actually. In IGNOU, they have made this course very flexible, I can say. If you are able to or you are confident enough to appear the exam, then you can go for for sitting. Otherwise there is no restriction. In the next year also you can opt it, no issue. And basically what happened, you will be given with some assignment or some question based on different paper, and based on that question you have to prepare it in your home. आप उसको घर में बनाइए और आराम से आपका जो रीजनल सेंटर है, जो स्टडी सेंटर है, वहाँ पे आप उसको यू कैन डिपोजिट, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये है। और अच्छा रहता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो आप मत दीजिए एग्जाम, नेक्स्ट टाइम भी दे सकते हैं। इट्स टोटली you are given the freedom for to do that. ओके। अच्छा, ये यहाँ पे हमारा शुक्ला जी है ना, आप कुछ आप आपने पीएचडी कर रखे हैं शायद ज्योग्राफी में और कुछ, शायद या आप या और कोई थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा। तो शुक्ला मैम, यू इफ यू लाइक टू से समथिंग और एनी डाउट और समथिंग लाइक दैट। नो सर, आई मीन मैंने पीएचडी नहीं किया है, मैंने अच्छा, ग्रेजुएशन। आप नहीं हो, फिर और कोई एक थे। या सर, मे बी समवन एल्स। हाँ, एक्चुअली क्या है, वो कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो कि आपका पहले 2-3 दिन में थे, फिर आई थिंक फर्स्ट और सेकंड डे में कुछ थे जो कि दे वर हैविंग पीएचडी इन ज्योग्राफी, सो दे ऐसा कुछ Some था। of the people were there yesterday also. I think there was some person from Jammu who was assistant professor or something, but I can't see the name today. Right, actually yesterday it was mine class also, but I was having some preoccupied work, so one of my friend, Dr. Satya, has taken yesterday class. Yes, sir was there. Yeah. So you are basically from where? So, I'm from UP, but I did my graduation from Delhi University, Miranda House, and it was, Okay. I mean, long back. After that, I've been preparing for exams. So Okay. so this is something which I'm doing on the side because I had interest in GIS earlier too, so I wanted to pursue it. And also, I'm looking for a career too in this. I mean, if possible, in 1 or 2 years. But slowly, I'm realizing that without MSc in geoinformatics, it would be tough. No, you are absolutely right. You're absolutely right. Because what is happening, you may be suppose in coming days, suppose you are going to have an expertise in GIS and some software, and also along with remote sensing and all. But when you are going to appear for an interview, maybe in a private company also, so they are going to first ask about your like not graduation degree, but for your The master degree. specialization, yes. Yeah. So in your graduation, what was the subject?
So geography honors. I did my graduation in geography honors only. Geography, not an, it's good. So, but whenever you get time, you can have the admission in MSc Geoinformatics. I think that would be better. Yes. Uh, in IGNO also they are having. They are having the course MSc in geoinformatics. Yes. So, acha, are you there in that group in WhatsApp group? You are there, I think. Yes, sir. I'm there in the WhatsApp group. Okay, fine. So, Mudita, if you want to have some uh, other assistance, something in career and something other also, you can reach us, no issue. Because Sure. Thank you yeah, so I much. am having this doctorate in remote sensing, and also actually I am very interested in geography. And you won't believe that myself, I've already I'm taking classes of geography also in remote sensing. Actually, I'm very interested, and where I'm studying now, I take classes of some other branches like environmental science and all. तो आजकल डेट में ये है ना, ये बहुत इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है. Yes, तो sir. आप बहुत इंटरेस्टिंग. कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Yes, sir. और आपका दिल्ली में ना वो जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे मैं बहुत बार गया हूँ. वहाँ पे अच्छा, the Delhi DSC, Delhi School of हाँ, Economics. It is in the आई North थिंक Campus only. हाँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बहुत एक दो बार गया हूँ. तो वहाँ पे आई थिंक Sudhamini Das or something, some professor were there. So we are working on some research paper. Okay. Oh, I see. अच्छा, और एक हमारे अभी यासीन जी आए हैं अभी, जस्ट आई थिंक ही हैज जॉइंड. इवनिंग सर. हाँ, वेरी गुड इवनिंग खान जी, क्या हाल है? इवनिंग सर. बढ़िया है सर. सॉरी सर, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, थोड़ा सा काम में बिजी था सर. सर कोई उसमें नहीं. सर दो तीन चीजें हैं सर, आपसे थोड़ा कंफर्म करना है सर. बोलिए सर अभी बोलिए. जो आपने असाइनमेंट के बारे में बोला है ना सर, हाँ, तो सर असाइनमेंट का एज फार एज आई नो सर, कुछ एक दो महीने पहले कुछ असाइनमेंट मिला था सर कि सितंबर में हमको करना है सर. अच्छा, हाँ हाँ, तो सर नहीं, हाँ सर. बोलिए बोलिए, आप पहले खत्म कीजिए, फिर मैं बोलूँगा. तो सर अभी जो आप असाइनमेंट बोल रहे हैं सर, अभी हमको नया मिलेगा कि सर वी हैव टू डू दैट, और लाइक दैट्स व्हाट आई डोंट नो सर. देखिए ये ना, आप थोड़ा वेबसाइट में तो देखिए, क्या होता है सर. ना, थोड़ा ईयरली कुछ वो चेंज भी कर देते हैं कभी कभी, ठीक है. अच्छा सर, ठीक. बट उसका प्रोसेस तो बहुत सिंपल है. आप जैसे एक टॉपिक है आपका, सपोज रिमोट सेंसिंग वाला MGY सपोज 101 है ना, या 102 है आपका, जो भी है. तो उसी का एक एक टॉपिक का आपको 4-5 मतलब 5 नंबर्स का रहता है शायद, और फिर 10 नंबर्स का रहता है, 100 मार्क्स का रहता है, ठीक है. तो 100 हाँ सर. नंबर्स का आप अपना आराम से आप घर में बनाइएगा, उसको अच्छे से लिखिएगा, और ठीक सर. उसको आप आराम से सबमिट कर सकते हैं. ये उसका प्रोसेस है. ओके सर. तो वो आप दूसरा सर, कहीं दूसरा हाँ, चीज ये है कि सर कि जहाँ तक मुझे पता है सर, ये लेबोरेटरी वाला सर थोड़ा सा वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी रहता है सर. क्या क्या ये लैब में सर, लेबोरेटरी में सर अच्छा, hands on लेबोरेटरी, training, हाँ. हाँ, उसका कब रहेगा सर? थोड़ा सा डाउट है सर. इसका देखिए, आप लोग का प्रैक्टिकल क्लासेस हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर अभी तक सर. मैं तो सर आपका जो क्लास है ना सर, वो पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ सर. उससे पहले तो ज्वाइन नहीं कर पाया सर, क्योंकि अच्छा, हमारे नहीं. मेल आईडी वगैरह में कुछ आया नहीं था सर. इस बारे अच्छा, में. नहीं, एक्चुअली क्या है कि IGNO they have not requested me for practical classes. सर प्रैक्टिकल क्लासेस हो चुकी हैं हमारी. RC Delhi 1 ने कराई थी ऑलमोस्ट 1.5 months पहले. ओके. यस सर. तो मैंने तो अटेंड की है, तो किसने मतलब किसने लिया था, आइडिया है कोई? जो काउंसलर थे कौन थे? सर आई हैव टू सी द टाइम टेबल. वी ओके गॉट ओके द मेल. ओके, लिव इट, जो भी है. तो कुछ बेनिफिट्स मिला था, जो भी है, क्लासेस वगैरह? हाँ सर, ये QGIS में थोड़ा बहुत कराया था सर ने. अच्छा. तो यही मतलब चीजें थी, और मैप वगैरह बनाना, लेयरिंग थोड़ी बहुत सिखाई थी सर ने. बेसिक ही था, बहुत ज्यादा तो टाइम नहीं दिया गया, लेकिन नहीं हुई दिया गया, हाँ. क्लासेस हमारी प्रैक्टिकल की. वही होता है ना, 2-3 दिन देते हैं, तो 2-3 दिन में तो ये 2 साल का पढ़ाई होता है, 1 साल का होता है, ऐसे थोड़ी होता है. हाँ तो तो क्या करें, चलिए जो भी है, जैसा चल रहा है चलने, तो कुछ तो मिल रहा है, राइट? नहीं सर,
इशू यह है सर कि हमको बताया गया था कि सर कि जो हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द लैबोरेटरी क्लासेस आल्सो. अच्छा That's the issue, sir. And besides, sir, I don't know, sir, कि क्या वहाँ पे पढ़ाया जाएगा लेब में, सर. लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको सर लास्ट टाइम कि आई वाज देयर फॉर 3 months एट सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद. हाँ हाँ So हाँ I पता है have experience in, sir, digitizing of cultural maps हाँ and हाँ area survey and also GIS. Well, especially to that, sir. So it won't be that difficult for me. But then सर्टिफिकेट पाने के लिए सर क्लास तो अटेंड करना पड़ेगा सर. That's the issue. That's what I am confused about, sir. कि कैसे करेंगे सर. ये यासिर जी आपने शायद पीएचडी की है ना आप या और मुझे भूल जाता हूँ मैं मतलब कौन कौन नहीं नहीं सर पीएचडी नहीं किया सर मैंने. आपने और एक कोई शायद दूसरा पता होगा नहीं। सर. दूसरा हाँ होगा दूसरा होगा अच्छा सर. खैर हाँ. छोड़िए कोई नहीं ये जो है ना ये सब्जेक्ट में ये ऐसा है आप सेल्फ स्टडी में भी ना यू कैन आप बहुत आप इम्प्रूव कर सकते हो और आज की डेट में मोस्टली सी पर हम लोगों का जब एमएससी वगैरह करते थे ना तो उस टाइम क्या है इतना मिलता नहीं था सारा चीज़. अभी तो आप लोग वेरी सिंपल है आप आराम से आपको कुछ भी मिल सकता है. ठीक है तो और मैं तो ये कह रहा हूँ आप कभी भी मुझे आप फोन भी कर सकते हैं या Of टेक्स्ट course, कर sir. सकते हैं. हाँ Sure, जो भी है मैं तो करता ही रहता हूँ सर आपको. हाँ आप तो करते हैं तो ऐसे क्योंकि ये क्या है ना मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना इसमें इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी कनेक्टेड विद आवर कंट्रीज गुड ब्रांड्स. ये मेरा थिंकिंग है और उसी टाइम में जो भी हम लोगों का एक्सपीरियंस है ये सब्जेक्ट में तो उसको हेल्प कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे ग्रेजुएशन करके निकले हैं या फिर मास्टर्स किए हैं तो थोड़ा कनेक्शन बहुत ज़रूरी है अदरवाइज और इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेट अ जॉब ऑल्सो. अभी जैसे लाइक अभी हमारे यहाँ पे कौन है वो अभी शुक्ला है ना तो नाउ क्या है दिल्ली DU पास आउट है नाउ शी इज प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एंड समथिंग लाइक दैट. तो थोड़ा सा कनेक्शन है मान लीजिए कोई प्रोफेसर है यहाँ पे या फिर कोई ऐसा कोई कंपनी में काम कर रहा है ऐसे लोग भी दे डू ऑप्ट फॉर दिस PGDGI एंड समथिंग लाइक कोर्सेस और Yes, sir. देयर करियर एडवांसमेंट. तो उसी में ऐसे न्यू बच्चे को भी हेल्प मिल जाता है मान लीजिए कहीं पे जॉब का ये सब में तो अच्छा रहता है ये सब है ना. तो ऑलवेज वेलकम फ्रॉम आवर साइड. ओके Thank you, भी sir. डॉक्टर सुनील लोंधे सर ने ली थी क्लासेस हमारी पता प्रैक्टिकल. नहीं मुझे एक्चुअली पता हाँ. नहीं है कौन है वो यस सर. क्योंकि पैन इंडिया होता है ना बहुत लोग रहते हैं तो पता नहीं चलता है क्या होता है. ठीक है चलिए कोई नहीं. ओके सो अभी आपका यूनिट 3 में जो है विल बी टॉकिंग अबाउट सम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर. ठीक है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर मोस्टली आपका वेजिटेशन के रिलेटेड में आपका कैसे रहता है क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और आपका सॉइल में क्या रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे और आपका वाटर में और मिनरल्स और रॉक्स में क्या रहता है. तो बेसिकली इसका लॉजिक ये है कि आपका जो इंटरेक्शन जो होता है ना सनरेज जो है वो इंटरेक्शन हर एक में कैसे अलग अलग होता है क्योंकि आपका एक तो दिया गया है वेजिटेशन का देन सॉइल इज टोटली डिफरेंट देन आपका वाटर भी टोटली डिफरेंट है एंड मिनरल्स एंड रॉक्स आर आल्सो टोटली डिफरेंट फ्रॉम मीन्स ईच एंड एवरी फीचर्स दे आर टोटली वेरिंग फ्रॉम ईच अदर. वो सबका प्रॉपर्टीज अलग है उनका केमिकल कंपोजिशन अलग है. सो एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर राइट. So first of all we should know what is a spectral signature. Okay so spectral signature are nothing but it is a combination of reflection absorption then transmission or emission of EMR by object at a variety wavelength and which can uniquely identify an object. तो इसका मतलब ये है बहुत सिंपल सा है कि आपका जो सनरेज जहाँ पे एक सनरेज जो स्टार्ट किया ना जर्नी तो इन दैट जर्नी ऑन द वे इट गेट्स एब्जॉर्ब देन कुछ जगह पे एब्जॉर्ब हुआ कुछ जगह पे ट्रांसमिटेड हो गया उसको मतलब पेनिट्रेट करके आगे गया देन फाइनली इट इज रीचिंग द ऑब्जेक्ट अगेन फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट वो और मतलब वहाँ पे भी अगेन देयर इज ए चांस ऑफ
being like absorption, reflection होता है, फिर अगेन इट इज कमिंग बैक टू द आपका जो भी सेंसर या जो भी लगा हुआ है डिवाइस जो है वहाँ वो पहुँच रहा है। तो ये जो प्रोसेस है और एक कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड एक्शन है आपका, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, एमिशन, ये सबको हम कंबाइंडली बोलते हैं, तो दैट इज ए स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। ठीक है, इतना ही आप इसमें याद रखिए। उसके बाद क्या है कि जैसे ये यहाँ पे दिया गया है आपका अलग अलग फीचर्स में ना कैसे इट रिएक्ट्स करता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसके बारे में है। जैसे ये आपका यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है और रिफ्लेक्टेंस दिया गया है, मतलब अलग अलग चीज़ का अलग अलग। जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्लियर वाटर दिया गया है, देन वाटर विथ फाइटोप्लैंक्टन, राइट। और यहाँ पे आपका जैसे हेल्दी वेजिटेशन है, ग्रीन में दिखाया गया है, और मे भी आपको रॉक्स एंड अदर मिनरलाइज्ड जोन, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अलग अलग चीज़ का अलग अलग रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जैसे आपका देखिए मैं आपको एक एग्जांपल मैं क्या यहाँ पे जो एग्जांपल जो है, जैसे ये आपका एक सैटेलाइट इमेजरी है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट इमेजरी क्या है, दिस इज ए कलरफुल वन है, दैट मीन्स इज ए फॉल्स कलर कंपोजिट दिया गया है यहाँ पे, रियल में रियल वाला नहीं है ये, दिस इज ए फॉल्स कलर कंपोजिट। और एक होता है एनसीसी, दैट इज नेचुरल कलर कंपोजिट, जो आपका फॉर एग्जांपल आपका फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट क्या है वो ग्रीन दिखता है, बट हियर द फॉरेस्ट इज गिवन एज रेड इन कलर, राइट। तो अभी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्यों देते हैं, क्योंकि ये क्या होता है ना, आप अगर एफसीसी देते हैं तो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में और आपका जो डिफ्रेंसिएशन में इट हेल्प्स, थोड़ा सा मददगार होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये अपर में जो राउंड दिया गया है ना, तो इट इज़ वेजिटेशन एरिया है। और जैसे ये वाला जो डार्क कलर का है ना, ब्लैक कलर में, तो वो आपका एक रिवर बाउंड्री है, रिवर जा रहा है वहाँ पे, राइट। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं सो रॉक आउटक्रॉप है, कुछ रॉकी एरिया है वो, या कुछ सॉयल है। अच्छा, कोई बता सकता है मुझे ये वाला जो सियान कलर जो है ना, ये रिवर वाटर बाउंड्री से नीचे जो है सियान कलर में, ये क्या हो सकता है, कोई मुझे बताइए। अगर किसी ने कुछ काम किया है पहले या फिर ज्योग्राफी, जैसे ये मुझे आई थिंक इनको पता होना चाहिए, हमारा क्या है उनका नाम, मुदिता, मुदिता यू शुड नो इट, पता है आपको क्या है वो? सर ये दिस द रॉक आउटक्रॉप के आसपास का सियान? नहीं उधर का नहीं, मैं इधर का बोल रहा हूँ, जो ये रिवर वाटर बाउंड्री लिखा गया है ना उसके नीचे जो है, रिवर वाटर बाउंड्री के नीचे सर? हाँ, जहाँ पे बाउंड्री लिखा है ना पूरा वाटर बाउंड्री, उसके जस्ट नीचे देखिए। सर बड़ा सेडिमेंटेशन हो सकता है रिवर का थोड़ा बहुत आसपास? नहीं, थोड़ा सा आप और थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। रिवर का आप सोचिए, रिवर का इतना दूर तक थोड़ी जाएगा, रिवर का सेडिमेंट है कैसे जाएगा बताओ मुझे, थोड़ी जाएगा, नहीं। और एनीबॉडी, एनी गैस? सर सेटलमेंट है। हाँ, सेटलमेंट ही है, ये प्योरली सेटलमेंट है। और आप देखिए और एक चीज यहाँ एक इंटरेस्टिंग है, इसका जो ना रिवर का और एक मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे भी सेटलमेंट है, बट यहाँ पे और रेड रेड दिख रहा है, तो वो क्या हो सकता है? ये अर्बन सेटलमेंट है सर। हाँ अर्बन सेटलमेंट है, बट अर्बन सेटलमेंट के अंदर जो रेड रेड दिख रहा है ना, वो क्या है? ट्री हो सकता है। हाँ वेजिटेशन। हाँ, राइट। तो इस टाइप का सेटलमेंट को हम क्या बोलते हैं ना, मिक्स सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए हम जो जैसे प्लांट सिटी है ना, जैसे आपका पंजाब, आपका ये चंडीगढ़ हो गया, या फिर इधर हमारा भुवनेश्वर है, तो ऐसे सिटी में क्या होता है, पहले से प्लान होता है कि भाई आपका यहाँ पे रोड बनेगा और रोड के साइड में एक एवेन्यू प्लांटेशन रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका पार्क्स रहेगा, ऐसे प्लान वे में होता है। तो बीच बीच में जो आपका ट्रीज वगैरह है उसका रिफ्लेक्टेंस है, और ये यहाँ पे कैप्चर किया गया है एज ए रेड कलर, ठीक है। जैसे ऊपर में आप देखिए ना, वेजिटेशन का ज़्यादा वेजिटेशन है यहाँ पे, ये कुछ मतलब थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया वगैरह होगा, तो इसीलिए वो ज़्यादा रेड है। ये ना, ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जब हम
विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, तो एट दैट टाइम वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल क्या टोन से कैसे पता चलता है, टेक्सचर से कैसे, कलर से कैसे, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे आपका वेजिटेशन में आपका क्या है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वेजिटेशन में कैसे क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई आपका और लीफ कैनोपी का क्या रोल रहता है, क्या है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हेल्दी वेजिटेशन है या जैसे कुछ डिजीज, हाँ डिजीज प्रोन भी अगर है तो उसका कैसे अलग अलग रहता है। अच्छा, एनडीवीआई क्या होता है, कुछ आइडिया है? जैसे यहाँ पे ये दिया गया है हाई एनडीवीआई और लो एनडीवीआई, इसको देख के आप बताओ क्या होता है एनडीवीआई। एनीबॉडी? अभी नया अभी ज्वाइन किए हैं, अभी कौन अपना ये है ना, मीर बिश्नोई एंड और कोई एक आए थे, पता नहीं वो भाई साहब गायब हो गए। अच्छा मीर, आप बता सकते हो कि वो क्या है, वो एनडीवीआई क्या होता है? No, sir, I don't know. यू शुड नो, व्हाई यू डोंट नो? अच्छा मैं बता रहा हूँ, एनडीवीआई ये वाला इमेज में और ये वाला फोटोग्राफ में क्या है आपका, ये तो वेजिटेशन का है या नहीं, पेड़ तो दिखा है वो, है ना। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक ग्रीन पेड़ दिख रहा है और राइट हैंड साइड में क्या है, Yes, sir. थोड़ा सा मतलब जैसे पानी वानी नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ, थोड़ा स्ट्रेस का दिखाया है ना। Yes, तो sir. तो यहाँ वी कैन हैव ए कंपैरिजन, राइट, कि जैसे देखिए अगर आपका एक एक सिंपल सा चीज है, एक पेड़ अगर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, मतलब अच्छा पेड़ है तो उसको जैसे healthy plant and stressed plant, sir. Healthy हाँ plant. नहीं, वो तो इंग्लिश में पता है, हेल्दी एंड स्ट्रेस, दैट इज ओके, बट हिंदी में एक अच्छा वर्ड है, दैट्स व्हाई मुरझा जाना मुरझा, पेड़। एग्जैक्टली मुरझा हुआ। ये दिस वर्ड आई वाज ट्राइंग टू रिकॉल, बट याद नहीं आया। Correct. Yes. Yes. तो राइट हैंड साइड में दिस इज ए मुरझा हुआ ट्री, राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक अच्छा वाला ट्री है। तो जब भी सन रेज आता है ना, आप देखिए यहाँ पे एक वो एरो वाला ये है ना, जैसे सोलर रेडिएशन हो रहा है, आप देखिए हेल्दी वाला जो है वहाँ पे आप पूरा दो प्लांट का जो है ना लीफ को यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि आपका सोलर रेडिएशन दोनों बोथ द लीफ दे आर गेटिंग द सन रेज, राइट, बट व्हाट इज हैपनिंग, आपका जो NIR है, नियर इंफ्रारेड है, और आपका यहाँ पे क्या दिखाई Visible red. Visible red, sir. विजिबल है। अच्छा, तो आप राइट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा था ना, आपका NIR और विजिबल का दोनों का ना उसका रिफ्लेक्शन अच्छा आ रहा है, ठीक है, बट वही पे इसको क्या है देखिए, जो अगर इट इज ए स्ट्रेस वाला है तो उसका ना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, अगर हो रहा है तो इट डिफर्स, ठीक है, मतलब कम इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये वाला क्यों दिया गया है कि सपोज ये तो हमें लगा कि सर क्या ये किसको ये वाला छोटा सा चीज पता होगा क्या होगा, बट जस्ट थिंक इन ए वेरी ब्रॉड वे। फॉर एग्जाम्पल आप अमेजन फॉरेस्ट का तो जानते हैं, राइट, अमेजन फॉरेस्ट इज ए वेरी वेरी लार्ज एरिया, और इतना बड़ा उसको हम अर्थ का लॉन्ग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं ना, राइट। Yes, sir. तो वहां पे आप सोचो एक बड़ा पैच है जहाँ पे ड्यू टू सम आउटस्प्रेड ऑफ सम लाइक वेजिटेशन का डिजीज कुछ हुआ है, ठीक है, तो सैटेलाइट इमेज से वो पता चल जाएगा कि भाई इतना एरिया है, जाकर तो हम उसको, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए फिजिकल विजिट, हो नहीं सकता। तो फॉर दैट पर्पज ये जो डिफरेंशिएट होता है ना, उससे हम वी कैन कम टू ए कंक्लूजन दैट समथिंग इज हैपनिंग देयर, सम इश्यूज आर देयर, और मे भी आपका जो बड़ा रेन फॉरेस्ट एरिया है आपका, जैसे उड़ीसा में है आपका, हमारा सेंट्रल इंडिया में है, आंध्रा, कर्नाटका, ये सब एरिया में जो बड़ा बड़ा फॉरेस्ट एरिया है ना,
Forest is, yes. हाँ, तो फॉरेस्ट फायर हो रहा है, सो सैटेलाइट कैन डिटेक्ट इट, पता चल जाएगा उसका कुछ अगर इशू हो रहा है तो, दैट्स व्हाई इट इज एक्चुअली यूजफुल। ठीक है, तो ये है एक। दूसरा क्या है कि, एक मिनट देखिए, अब ये वाला देखिए, एक और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि भाई आपका सपोज एक ए फोटो में जैसे मैपल ट्री है, मुझे पता नहीं है मैपल ट्री क्या होता है, मैं कभी देखा नहीं। और एक राइट हैंड साइड होता है पाइन ट्री, आई नो इट। सो ये क्या क्यों दिया गया है, सी, आप जो मैपल ट्री का कैनोपी कवर आप देखिए और पाइन ट्री का कैनोपी कवर आप देखिए, पाइन ट्री का थोड़ा सा कैनोपी कवर कम है या नहीं, थोड़ा सा नैरो लग रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा कैनोपी ज्यादा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो हम सैटेलाइट इमेज से पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ का फॉरेस्ट का डेंसिटी कैसा है, वेदर इट इज ए वेरी हाई डेंस एरिया है और थोड़ा मीडियम डेंस है। दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी लाइक स्टडीड इन ए वेरी एक्यूरेट मैनर। ठीक है, और उसके बाद मैं बस थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं क्योंकि कंप्लीट भी करना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया देके। अच्छा, अब अच्छा ठीक है, और एक चीज़ है मैं स्किप कर गया, जो NDVI मैं बोल रहा था ना, एनीबॉडी NDVI का फुल फॉर्म क्या है, फिर उसका एप्लीकेशन क्या, मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है उसका। नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडिसेस, दैट इज NDVI। तो इसमें क्या होता है, द ब्यूटी ऑफ NDVI एनालिसिस इज दैट, सपोज हमारा एक, मैं किसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मुदिता हो गया एक एग्जांपल, और दूसरा है सपोज अपना नायडू जी है। ठीक है, तो क्या है कि सपोज नायडू जी, ही इज प्रोवाइडेड विथ ए सैटेलाइट इमेज ऑफ ए वेरी लार्ज फॉरेस्ट एरिया, नहीं, ऑफ टोटल आंध्रा। ओके, that is one example. And second one is suppose Mudita, she is being provided with a satellite image of Puri and आपका Delhi and Haryana, for example. Okay, so both of you, your work or your assignment is that you have to find out कहाँ कहाँ पे आपका ओनली वेजिटेशन है, वो आपको दिखाना है। कैसे हो सकता है बोलिए, आप मुदिता आप बता सकते हैं, मतलब कुछ आइडिया है कैसे आप निकाल सकते हो? आपके पास सैटेलाइट इमेज दे दिया गया है, आपको हरियाणा और दिल्ली का बाउंड्री मिल गया आपको, तो आप कैसे, कहाँ पे वेजिटेशन है, कैसे आप निकल सकते हो? और आपके पास टाइम ओनली 2 आवर्स है और आप जॉब कर रहे हो एक जगह पे, अगर आप नहीं करोगे तो यू आर गोइंग टू बी किक्ड आउट। आप सोचो इन दैट सिचुएशन आप कैसे कर सकते हो? सर पता नहीं, नो अरे आइडिया। नहीं, क्यों पता नहीं यार, पता होना चाहिए। हैं, why I am trying to make this session interactive. मेरा see actually I was a scientist actually, now actually I am working as a professor, so my style of teaching is totally different. जो लोग डायरेक्ट प्रोफेसर होते हैं ना तो उनका अलग होता है, मेरा क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जा के मतलब फील्ड में भी हम लोग काम किए हैं ड्यूरिंग साइंटिस्ट, तो इसीलिए मैं ये सोचता हूँ ना कि जब तक लाइव एग्जाम्पल हम नहीं देंगे तो थोड़ा सा अलग रहता है। अगर लाइव एग्जाम्पल दे दिया ना तो वो फिर इजी रह जाता है, हम लोग उसको याद रह जाएगा। Yes, sir. It will directly going to. सर जो पूरा हमारा मतलब जो इमेज है, हमारी जो हाँ। इमेज होगी उससे रेड रिफ्लेक्टेंस को NIR रिफ्लेक्टेंस का सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो सर हम अब आप लाइन पे आ रहे हो या नहीं बताओ, पहले बोल दिए सर पता नहीं। और सर वो रेड रिफ्लेक्शन याद आया कि वो वेजिटेशन का था, तो उसी को माइनस कर देंगे अगर पूरे एरिया से जो हमारा इमेज का जो भी प्रोपोर्शन है तो उसी में होगा। तो देखो अभी मैं थोड़ा सा आपको पुश किया तो आप आंसर दिए नहीं, बताओ। हैं, आप मतलब समझ रहे हो ना? तो ऐसे पता है क्योंकि ये होगा, थोड़ा सा हम आपके पीछे पड़े, देन यू जस्ट आप ट्रैक पे आए, राइट? तो
इसी को ना, जैसे आप जो बता रहे थे, उसका एनडीवीआई जो है, नॉर्मलाइज डिफरेंट वेजिटेशन इंडिसेस, उसका एक फॉर्मूला है, वो है NIR माइनस IR डिवाइडेड बाय NIR प्लस IR। ये इसका सिंपल सा फंडा है। वो चीज अगर इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट इमेजरी, देन वो क्या करेगा, आपका जो टोटल स्टडी एरिया है ना, वो टोटल स्टडी एरिया में से जहां जहां पे आपका वेजिटेशन है, वो उसको एक्स्ट्रा कर देगा और एक्स्ट्रा एक सैटेलाइट इमेज, मतलब एक आउटपुट जो है एनडीवीआई के फॉर्मेट में आपको वो दिखा देगा, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो इट विल बी डन इन ए लाइक within minutes, sir. विदिन मिनट्स, राइट। Yes, sir. हाँ, डिपेंड्स ऑन योर, अगर आपका लैपटॉप कैसा है, क्या है, अगर बहुत पुराना है या फिर थोड़ा प्रोसेसिंग में स्लो है तो अलग है, अदरवाइज विदिन मिनट्स इट कैन बी डन। Done. पर आजकल तो एक हाफ मिनट में भी हो जाएगा, आपको कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं चाहिए। अगर आपका गूगल अर्थ इंजन आप यूज कर रहे हो, तो बहुत सारे जगह पे टोटल वर्ल्ड का एनडीवीआई बना हुआ है, तो और इट इज इन ओपन सोर्स, तो बाय यूजिंग सम कोड, और सपोज आपके पास वो कोड लिखा ही और लिखा हुआ मिलता है भी आजकल, ठीक है, तो आप वो कोड को यूज करके जस्ट यू हैव टू गिव योर ज्योग्राफिकल बाउंड्री, राइट। तो नायडू सर अपना आंध्रा का दे देंगे, आप हरियाणा का दे दो, भाई 1 सेकंड में आप रन कर दो, देन विल यू आर गेटिंग द आउटपुट, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एक्चुअली आजकल, ठीक है। ऐसे ही आप अदर इंडिसेस आर देयर, आपका NDWI है, वाटर इंडिसेस है, तो जहां पे भी वाटर है तो वो वाटर को निकाल देगा। वो आपका बिल्टअप इंडेक्स है, जहां जहां पे सेटलमेंट है वो उसको निकाल देगा, एक्सट्रैक्ट करके एक्स्ट्रा कर देगा आपको, राइट। तो इसीलिए आज की डेट में आप देखना, पहले क्या है, थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग थोड़ा सा रिमोट सेंसिंग में नहीं आते थे, बट इफ़ यू आर गोइंग टू हैव ए सर्वे, अभी आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द गुड साइंटिस्ट इन रिमोट सेंसिंग दे आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड के लोग क्या है ना, ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। No, sir. Actually, sir, actually here MTech course is there in Andhra University, water resource and remote sensing, sir. राइट, राइट। Yes, sir. Some MTech course is there. Civil engineer, basic admission for civil engineers and only. नहीं, एक्चुअली क्या है ना, आज की ऐसा हो गया है कि आपको मैं बहुत टाइम में आई गिव लेक्चर्स टू, यू डोंट बिलीव, अभी कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर से मिला था। ही इज हैविंग ए बैकग्राउंड ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड फिल्मिंग, राइट, फैशन टेक्नोलॉजी, यू डोंट बिलीव, बट Okay. he is using remote sensing in an extensive way, you won't be believe, you won't Okay. believe it. So And how is it, sir? How is it is helpful to him, sir? In which field is actually? I am giving an example. There are Yes, so sir. many ways to use it. Actually, actually, we have prepared a combined project actually, and we have submitted it to an organization, and it is a study of a very ancient your temple, right. So in that project we are like a person like me, having physics and remote sensing background, and with a good exposure to geography, and some persons from civil background and architecture, then social scientist, along with the person that I was talking about him. So he is basically from media and fashion. So and you won't believe that the plan came from him only. ओके, तो वहां पे क्या होगा कि आपका 1000 years पहले जो वो आपका टेम्पल बना था ना, तो Yes, sir. वो अभी उसका इवोल्यूशन कैसा है, मतलब और इसमें जियोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि किस टाइप का रॉक था वो, वहाँ का सॉइल कैसा था, कि अभी इतना सारा आपका अर्थक्वेक हो रहा है, बट स्टिल दैट पर्टिकुलर टेम्पल इज स्टैंडिंग, एंड ही इज सेइंग द हिस्ट्री बिफोर अस, राइट। वो हिस्ट्री बता रहा है कि भाई
इतना 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल से आई एम स्टैंडिंग देयर। तो उसमें उनका क्या रोल है? वो ये चाहते हैं कि by the collection of different literature, maybe from some ancient library, maybe from some local जो बोलते हैं ना, हाँ, लोकल पीपुल जो ओल्ड एज पर्सन है उनसे कुछ, Yes, sir. और कुछ वो पहले वो ताल पत्ते पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना उस टाइम, Yes, sir. ऐसे कुछ मतलब Old records, old records. ओल्ड रिकॉर्ड्स। तो वो सारा चीज को कैप्चर करके एक विजन ये है कि एक 4D वीडियोग्राफी किया जाएगा, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे करके आपका एक सिनेरियो बना जाएगा कि एक फिल्मिंग की स्टाइल में, एक फिल्म की स्टाइल में वो आपको सामने दिखाया जाएगा कि लाइक बिफोर 2000 इयर्स दिस वाज द कंडीशन एंड एट दैट टाइम कैसे बना था और क्या है, ऐसे इस टाइप का है। तो आप सोचिए कैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। Yes, sir. तो Well, nowadays, GX is very useful in every field, sir. Every field you can use it. Yes. and The only one more and one more example right now, that the person who is now talking with me, Naidu ji, Sir, sir. he is a retired person, but again he is And taking interest in this subject. तो इससे no, बड़ा actually, एग्जाम्पल और no, क्या no, है? not like that. Because when I was working in land management, my friend did remote sensing and water sources MTech. That's Right. why I got understand. It is very useful for me Mhm. also. In land management, because you have to segregate the land according to usage, infrastructure wise, and drainage special. All these things you have to give in that maps and. Right, That's why. right. And remote also actually so many mangroves also there. You have to see all these things, sir, while planning the land for utilization. That's why. And also, Right, right. it may be in future it may be very useful subject. I think so, sir. नहीं, आजकल क्या सारे Yes, sir. सारे डोमेन में इसका यूज है। Sir. Everywhere, medical field, transport field, everywhere. Because सब you only see compilation of data, sir. How the राइट। expansion is going on, how it was decreasing, like that. Anything you can discuss there with the So that's sir. why nowadays there is a convergence of almost all the technology. Like here, computer science students are there, computer science person, then Yes, sir. an environmentalist, geographer, Yes, economist, sir. social scientist, Everybody, everybody. everyone's participation is required, sir, because in this field, And in different study what is happening ki, uh, uh, if you are having some expertise, suppose someone is only a geographer is there, okay, but they are not like engineers, na? So in that time we need to have the expertise from an engineer, so their way of thinking, their expertise is going to help a lot, okay. mm, no, और like that, अच्छा sir, because अभी whenever some areas, excuse me, sir, some areas there, when what are the types of soils, what type of structure we can construct there, so how right, many floors we can do, like that also we can do analysis through this information, GIS information, geography, if you know yes, about the soil data, vegetation, forest area, and also you can incorporate the land, urban development that rules, how much extent they will permit to construct the buildings, like that, how much land space you have to keep, everything you have to use this one, sir. ओके। तो Thank थैंक यू नायडू sir, जी, I'm आप taking अभी your more time, sir. नहीं 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 नहीं, इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज सी Yes, फॉर sir. दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ना, only I think Yes, sir. another 7 or 10 And pages are actually, there. and your thinking also very friendly, sir, friendly nature, and very much interested, sir. Actually, नहीं, as you have thought, ये होना चाहिए। participation is very much useful, sir. Participation is very much useful for everybody else. You will be, whatever you know, will expose to others also. Whatever they हाँ, know, they will tell to us. We can नहीं understand. बिकॉज क्या No, है, देखिए अभी no. Yes, इग्नू sir. में जो लोग Yes, मतलब एडमिशन लेते हैं ना, मोस्ट ऑफ द yes, sir. पर्सन जो पढ़ाई कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोग ही करते हैं मोस्टली। Yes, sir. Everybody is working on sir. और Most of इग्नू में ना कुछ लोग डायरेक्टर भी हैं अभी, बट स्टिल दे आर लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट। अभी yes, sir. Yes, sir. Yes, some days back I was having yes, a sir. discussion with RC Bhubaneswar here, deputy director and some other additional research director, someone we are having a discussion. Yes, sir.
तो वो बोल रहे हैं Yes, सर sir. हम लोग तो ये कोर्स कर रहे हैं कुछ कोर्स कर रहे हो Yes, sir. Yes, sir. No, the opportunities are no, because in the daytime going to college and is not possible to everybody, and yeah, have the facility to online also. In earlier days, actually, I did my graduation through IGNO only, sir. BTech in civil हाँ engineering. I did. Yes, sir. After that, I did my ME soil mechanics one in Andhra University part time, राइट and राइट PG diploma on urban planning also. I did the IGNO only 3 years back. But here thing is And that self study is required. It's totally based on self self-study is study. required. Self-study is required. Nowadays it Actually, is. your explanation, see, this brief explanation also very Hmm, much helpful to us, sir, hmm, because hmm, hmm. blindly going to the subject is will be difficult, but this brief explanation will give some helpful to us, sir. राइट That is there, अच्छा sir. वेलकम विनय जी अभी हमारा एक विनय जी ज्वाइन किए हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। लेकिन बहुत देर कर दिए गुड इवनिंग सर यहाँ रेनिंग हो रहा है सर। और रहना हो रहा है See, sir, अच्छा कोई Hyderabad, कोई Hyderabad, sir. कोई हाँ बात सर। नहीं यहाँ भी हो रहा है भुवनेश्वर में भी बहुत सारा बारिश हो रहा है सर ऑफिस से आने के बाद भीग गए सर, इसलिए लेट हो गए। हाँ भीग गए हाँ सर। अच्छा अच्छा आप ये बताइए मुदिता एंड मीर आप लोगों के उधर क्या हाल है बारिश हो रहा है कैसे सर मैं रायबरेली में रहती हूँ। अरे अरे आई होप तो सर यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, पूरा सूखा डिक्लेयर्ड पड़ा हुआ है। है बिल्कुल बारिश अरे वारिश कुछ नहीं है, होती है बट बहुत पैची सी होती है, थोड़े एरिया में हो जाएगी, पूरे शहर में भी एक साथ बारिश नहीं होती है। तो हाँ स्कैटर्ड बहुत है आजकल तो और क्लाइमेट चेंज ऐसे है ना तो आप बोल नहीं सकते कहाँ पे हो रहा है सर टुडे फॉर क्लाइमेट चेंज क्या सर, दिल्ली लखनऊ इन जैसे मेट्रोज में हो रही है, रायबरेली तो फिर भी ग्रीनर है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। हाँ पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ सालों से 4-5 सालों से यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। तो आप इसको यू शुड गो फॉर ए रिसर्च ना क्यों क्यों ऐसा हो रहा है Probably Yeah. sometime in future. हाँ बिकॉज एज यू आर हैविंग ए बैकग्राउंड ऑफ ज्योग्राफी सो यू शुड थिंक अबाउट इट कि आप वहाँ पे क्यों ऐसे हो रहा है पहले तो सर मुझे तो मैंने सोचा है इस बारे में, पर मुझे यही हमेशा लगा है कि थोड़ा सा मिडिल यूपी में पड़ जाता है तो यहाँ तक आते आते सारा ऑलरेडी शेड हो जाता है, कुछ क्या बचता नहीं है। मतलब मानसून नहीं पहुँचता है मतलब मॉनसून पहुंचता है सर, लेकिन अब मॉइस्चर तो पहले ही हो चुका है ना, काफी ज्यादा हर जगह आसपास जब गिर चुका है पानी, तो यहाँ पे कुछ कंटेंट ही नहीं बचेगा बादलों में, तो नहीं क्या गिरेगा। दैट इज ओके बट अगर आप यू विल थिंक अबाउट लाइक 20 इयर्स बैक तो उस टाइम हो रहा था नहीं साइंटिफिकली यू हैव टू थिंक अबाउट इट अगर हो रहा था देन अभी व्हाट आर द रीजन दैट नाउ दोज रीजंस आर बिकमिंग हिंड्रेंस इन द योर रेनफॉल है ना हो सकता है नहीं बताओ ये लॉस रिसर्च ऑफ वेजिटेशन या फिर वाटर बॉडीज भी कम हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है आसपास यहाँ लास्ट 5-6 इयर्स में, मैं तो क्यों इवापोरेशन वगैरह। व्हाई आई एम जस्ट ये जो टॉपिक को मैं खींच रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी आप एनडीबीआई का आप बता नहीं रहे थे और बस धीरे धीरे आप आए अब ये आप टॉपिक बोले आप अगर रिसर्च नहीं करोगे ना ये मैं खुद करूँगा अभी मुझे ये मेरे माइंड में आ गया है कि भाई रायबरेली का ऐसा है तो डेफिनेटली आई विल बी हैविंग अ डिस्कशन विद यूपी सैक आपका जो वहाँ पे डॉक्टर राव हैं ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन तो उनके साथ आई विल डिस्कस सो दे ही इज गोइंग टू डेफिनेटली गिव मी द सैटेलाइट इमेज एंड ऑल देन हम लोग एक प्लान करेंगे कि भाई रायबरेली का क्लाइमेटिक पैटर्न के ऊपर लिख के हम वी आर गोइंग टू हैव ए पब्लिकेशन ये मेरे माइंड में ठान लिया हूँ मैं so Sure, sure. so in that definitely your number is with me so in that case if you we require anything from you then आप इन्वॉल्व होंगे तो you are also going to be a co-author in our बिल्कुल publication सर, I'll be there. right देखिए नायडू सर ऐसे होता है आपका नेटवर्क कनेक्शन ऐसे हेल्प होता है Yes, sir. अभी Yes, sir. डेफिनेटली आई विल बी वर्किंग ऑन दिस Definitely, sir. टॉपिक Yes, sir. Definitely. चलिए तो ऐसा है और अच्छा अभी आपका देखते हैं यहाँ पे अच्छा अभी कुछ आपका सॉयल का है जैसे ये यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया गया है ना आप इसमें देखिए कि भाई आपका अगर आपका कहीं पे लोमी में भी सपोज सैंडी सॉइल्स इज देयर कहीं पे आपका इसमें वो क्या दिया है कि आपका सारा तो है सैंडी बट कहीं पे वेरी फाइन सैंडी है कहीं पे फाइन सैंडी ओनली फाइन सैंडी है और कहीं पे सैंडी लोम है तो ये इसलिए दिया गया है कि द रीजन इज बिहाइंड कि आप वेरिएशन कैसे करता है सॉइल का है ना सॉइल का टेक्सचर के वजह से हो सकता है या फिर
मान लो एक आपका रिवर है, रिवर का जो रिवर बेड में जो कुछ सैंडी एरिया होता है ना, तो कुछ क्या है कि प्योरली सैंड रहेगा, बट कुछ जगह पे क्या होता है ड्यू टू सम प्रेजेंस ऑफ सम सॉयल ऑल्सो, तो क्या होता है वहाँ पे आप देखे होंगे कुछ वेजिटेशन भी वहाँ पे बढ़ता है, राइट। तो अगर वेजिटेशन आ रहा है वहाँ पे तो फिर अगेन उसका रिफ्लेक्शन अलग होगा। तो ये दिस सम प्रैक्टिकल एग्जांपल। अलॉन्ग विद दैट आपका फिर मान लीजिए आपका सॉइल में अगर कुछ आयरन ऑक्साइड का कंटेंट है तो उसका अलग रहेगा, आपका मॉइस्चर है तो उसका अलग रहेगा। तो अगर मान लीजिए आपका सॉइल के साथ कुछ ऑर्गेनिक मैटर है तो वहाँ पे अलग रहेगा। तो ये मतलब मैं थोड़ा थोड़ा ही आई एम जस्ट गिविंग वेरी स्मॉल एग्जांपल, but apart from that so many other aspects are there which are interrelated to your reflectance, particularly in the context of soil. Okay, then in the last one, that is for your spectral signifier of water. वाटर में भी क्या है, जैसे सपोज आप सोचिए, आई एम गिविंग सम एग्जांपल कि आपका जो हैदराबाद का वो क्या है, वो जो बड़ा लेक है, वो सब जाते हैं हुसैन ना सागर घूमने, सर, हुसैन सागर सर, हुसैन हुसैन सागर। सागर सर। हाँ, हुसैन सागर। सोचिए हुसैन सागर में आप गए हो सर, नायडू सर, आप अंदर गए हो, वो जो मिडिल में है ना बुद्धा का वो जो है, हाँ, ना ये उधर तक नहीं गए सर अभी, जिससे बाहर गए सर। बाहर से बाहर देखे। से देखते हैं, बाहर से देखा। हाँ आप कभी जाना देखना, इतना स्मेली होता है ना वो जो पानी, हाँ, smell, हाँ, foul smell is coming, sir. बहुत Actually, but स्मेली है। along मैं the boundary also foul smell is coming because हाँ, all the sewage water is coming to that राइट। Sagar, no? तो City why water, I entire city हाँ, very college very, water. so why I have given this particular example because वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ जगह से, चैनल से जो डर्टी वाटर और मे बी इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स और समथिंग Yes. वाटर आर कमिंग, सो वहाँ का एक सैटेलाइट इमेज आपने लिया, और सपोज थोड़ा आउटस्कर्ट का एक रिवर भी आपका जा रहा है ना, आपका पता नहीं वो क्या रिवर है, एक मुझे मूसी याद मूसी सर। है ना। हाँ ठीक है, ऐसे दो चार आप जो भी मतलब आप एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहाँ पे जब सनरेज आएगा ना, तो सनरेज आपका हुसैन सागर में जितने दूर तक पेंट्रेट करेगा आपको बाकी जगह पे उससे काफ़ी अच्छा करेगा। और अगर इफ़ दे आर हैविंग ए ट्रांसपेरेंट वाटर लाइक, तो वाटर में क्या क्या चीज़ है, मिलावट क्या है, क्या क्या उसमें मिल रहा है, तो ये सारा चीज़ ना इट हैज़ एन इफेक्ट। और आपका फॉर एग्जांपल आपका जो रनिंग रिवर वाटर है वहाँ एक एग्जांपल है, एंड अनदर एग्जांपल योर सी वाटर एंड sea water, that means suppose a deep sea water, and another one is suppose a your क्या बोलते हैं उसको, estuarine, right? Estuarine is nothing है, it is a meeting point of आपका जो रिवर जाके जहाँ पे, River mouth, हाँ, sir. रिवर माउथ एरिया, राइट। तो उसी एरिया को हम एस्टुअरेंट बोलते हैं। तो वहाँ का वाटर और आपका जो मिड ऑफ द रिवर, मतलब जहाँ पे ज़्यादा सपोज पानी आ रहा है, और मैं Clean भी water, आपका, clean water. हाँ, Because और river, आपका, clean water. हाँ, मैं भी आपका सपोज जहाँ से द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सपोज योर पर्टिकुलर रिवर, तो उसी एरिया में आपका स्पीड ज़्यादा रहेगा ड्यू टू द स्लोपी एंड एलिवेशन, राइट। तो ये अलग अलग जगह का, सपोज यू हैव टेकन द सैंपल and you are going to have a satellite image, so you are going to have a difference variation in the your river का, हाँ, वाटर का। तो यही है कि डिपेंड्स ऑन योर डिफरेंट, लाइक कहीं पे टर्बिडिटी है, कहीं पे एल्गी है, स्नो है, आइसी है, ऐसे है। सो बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट थिंग्स, वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट इमेजरी। अभी जैसे देखिए जो मैं बोल रहा था ना, उस टाइप का कुछ यहाँ पे दिया गया है कि जैसे फिगर ए में फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी, इसमें ए में है पैनल शो हाई क्लोरोफिल कंटेंट, ठीक है, ये पे ज़्यादा क्लोरोफिल यहाँ पे है वो बता रहा है। बट बी में क्या दिया गया, सेकंड फोटोग्राफ ए लेफ्ट पैनल, Clear water body, sir. Clear water body. अच्छा ये क्लियर वाटर बॉडी है, लेकिन ये गलत लग रहा है, ये गलत दिया है।
गलत है। हम हमारा बुक में अच्छा दिया सर, अब ये भी डिफरेंट, बट इन योर बुक इज डिफरेंट सर। ये इज क्या? ये इज हाईली हाई क्लोरोफिल, हाँ here A is hydrochloric water body and B is a clear water body. In our book is हाँ given correctly हाँ, sir, in yes, that's why your I'm book is differently given sir. हाँ, it is a wrong portrayal, wrong किए हैं ये लोग। No, no, yes, sir. तो थिंग इज दैट वट एवर जो प्रिंट मिस्टेक है जो भी वो किए हैं Print mistake sir, print mistake sir. नहीं नहीं, नॉट प्रिंट मिस्टेक, एक्चुअली जिसने वो अरेंज किया होगा ना फोटोग्राफ्स, उसने हाँ, सर। गलत कर दिया है। तो जो भी है खैर छोड़िए। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल्स है, कहीं पे भी ज़्यादा क्लोरोफिल ज़्यादा है। क्लोरोफिल में इसमें क्या है कि कुछ पत्ते वगैरह लीव्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और एक क्लीन वाटर है। तो दोज थिंग दोज डिफरेंशिएशन कैन बी स्टोरीड इन ए गुड मैनर, इन ए गुड एक्यूरेसी। ठीक है। अब क्या है, लास्ट पार्ट में आपका मिनरल्स एंड रॉक का है। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, जस्ट देखते हैं। जैसे आपका ये क्वार्ट्स है, कहीं पे आपका ये क्या है, Calcite sir, calcite. कालेनाइट है, कैल्साइट है। तो अलग अलग का अलग अलग मिनरल्स का अलग अलग उनका रिफ्लेक्टिविटी होता है। तो बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो हम उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया गया है रिफ्लेक्ट ऑफ सिलेक्टेड मिनरल्स, सो मिनरल्स का कुछ अलग रहता है, हर किसी का अलग अलग रहता है। सो दोज थिंग्स, इसमें क्या है कि दोज हु आर हैविंग जियोलॉजी बैकग्राउंड एक्चुअली दे आर वेल अवेयर अबाउट सच क्लासिफिकेशन। हम लोगों को भी इतना सारा नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव सम कंबाइंड स्टडी। ये सब में सपोज मुझे दिया गया एक एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल, और एक सिविल इंजीनियर का दिया गया है और एक जियोलॉजिस्ट को, तो जियोलॉजी दे आर गोइंग टू गिव ए गुड रिजल्ट। ओके। तो this is about your this particular block 1 actually. So I think that's all for today. So tomorrow I think just कल का क्या है देख लेते हैं। आपका ये कल में है Sensor and space program sir. सेंसर में। हाँ अच्छा, ये अच्छा है, पहला वाला थोड़ा ये है, बट सेकंड जो है ना इमेज रेजोल्यूशन, ये आपको बहुत, दिस इज वेरी यूजफुल, इमेज रेजोल्यूशन। और बाकी तो ये हिस्ट्री है, ये आपका इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम और रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोडक्ट भी अच्छा है। राकेश सर, हेलो आगे सर। आपका, हाँ बोलिए सर एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ बोलिए। में एक लैंड है सर, अब उसको हम जियोलॉजिकली एग्जैक्ट मार्क कर सकते हैं क्या? उसका बॉर्डर्स हो दीजिए। अभी रियल टाइम कुछ ऐप है क्या सर उसके लिए? सी, आप तो ऐसा नहीं है, बट ऐसा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इन ए लाइक टेरेन बेसिस और जियोमॉर्फोलॉजिकली, राइट? यही है ना? हाँ वैसा नहीं सर, मैं एक खेती खरीद रहा हूँ और हाँ उसका बॉर्डर्स जो है वो मैं अब वहाँ जो ऐसे स्टोन्स लगाए तो वो हिला सकते हैं ना सर इधर उधर। उसके अलावा हम उस एरिया को मैप कर सकते हैं क्या वो? नहीं, मतलब हम किस टाइप आपका, ओनली ओनली मार्किंग ऑफ दैट यू आर टॉकिंग, और हाँ बस मार्क करने का है सर। हाँ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? सी, हाँ आप वेरी सिंपल, आपका जो एक जगह है वहाँ का जस्ट गेट ए कोऑर्डिनेट, वहाँ का कोऑर्डिनेट आप ले लिए। Yes, ठीक है। actually, sir, nowadays the surveys are doing the total station survey. हाँ Is a electronically survey. They will give for every point latitude and longitude. Now, coordinates will be given. Accordingly, the coordinates will not be changed. It will be last forever. For your entire boundary, you can get the coordinates. हाँ, Latitude, longitude. and based on that you can plan कि आपका एरिया कितना है, Nowadays, क्या है। they'll give the area also boundary, and then AutoCAD they will give, sir. Nowadays, AutoCAD drawing is giving it coordinates, sir. The government is also doing the same survey, sir. I think Binay, this is the answer ना, और you are asking for something actually, मुझे ये लग रहा है ये है, और पता नहीं ये आपका क्या है। हाँ ऑटो कैड में मिलता है सर। मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक हाँ एक पीस ऑफ लैंड है, 4 एकड़ का लैंड है और उसको हाँ हम स्टोन्स लगाए थे ना सर बॉर्डर हाँ जैसा।
हाँ जो हाँ ठीक है। वो स्टोन्स तो हम हिला सकते हैं, तो बाजू वाला उसको हड़पने के लिए इधर उधर कर सकते हैं, पर हाँ अगर हाँ हम हाँ जियोग्राफिकली कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं क्या? आप देखिए जैसे हाँ सर हाँ बोला। हाँ, आप मैं हाँ समझ गया, मैं समझ गया। मैं आपको एक हाँ, एग्जांपल दे मैं आपको एक दे रहा हूँ। एक्चुअली सर। नायडू सर, व्हाट इज हिज इंटेंशन कि Yes, sir. what happened normally, suppose I have purchased a piece of land, for example 1 acre or 2 acre, whatever, okay, Yes, sir. Hmm. and I have got the official record, I have the क्या बोलते हैं उसको, पट्टा पट्टा जो भी है, ये Yes, sir. रेवेन्यू रिकॉर्ड से हमें मिल गया है, ठीक है, Yes, आफ्टर sir. रजिस्ट्रेशन। Yes, sir. But in course of time, I am not able to go there for long time, for a year or 2 year or Yes, whatever. yes, sir. Yes, sir. Understood, But sir. yeah, Hmm. so Yes, sir. but meantime, after purchasing what I did, I have Yes, sir. collected some stones और Hmm. मैंने वहाँ पे कुछ Sir, टेम्पोररी Hmm. कंस्ट्रक्शन Okay, में sir. कर दिया था, Hmm. ठीक है। Hmm. सो बिना वांट्स की सर उसको तो लोग साइड वाले जो है ना वो उसको Hmm. Yes, चेंज sir. कर हटा देंगे, दे. ठीक Yes, है। sir. तो उसका सोल्यूशन ये है Hmm. Sir, कि for the sir, entire boundary, he can have the हाँ latitude and longitude coordinates will be given, sir. Nowadays, the राइट, government is doing, sir. नो नो Entire नो नो नो, बट इट इज नॉट हैपनिंग एवरीवेयर, राइट, no, मे no, बी। no, no, हाँ, no. Everywhere they are doing, sir. Now government has employed so many surveys, sir. Every now no 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 sample no, survey they are doing. they are giving, but see, I'm giving example. Some states like mostly in South India it is happening, okay, Hmm. they are giving, but thing is Hmm. that suppose you don't have that in your registration, it is not there now in your registration, what is happening, they are Now, giving. sir, now, sir, sorry, sir. Now that government insisting to give the coordinates for every land parcel. Now, They are in registration also they insisting. are asking, sir. Now they are insisting the purchaser and seller also. Hmm. So For that is a good initiative because earlier they used to give the only boundaries of the scratch map. adjacent land use owners names they are going, but now Mm-hmm. they are going to give the coordinates. They Right. are definitely they are giving the mention the Sir, coordinates, sir, for every sir. corner or whatever wherever they want. Like that Yes, they are sir. going to do. Naidu sir is correct, sir. But the geo coordinates is 10 meters into 10 meters ratio, sir. Here, every 10 meters we can change the geo coordinates. No, no, but for that, one solution is you have to go for the DGPS survey. Yes, sir. Digital survey means that's the tortoise survey, sir. What I told you, na. नहीं नहीं, Just like in digital survey means yes, first right. of all, So you are going they to first get of the all they will do the accuracy of survey. centimeter accuracy you are going to get. Hmm. Yes, sir. In centimeters, sir. Centimeters, sir. Sorry, sir. Mm-hmm. Centimeter. Accuracy is So, centimeters, sir. right. Hmm. Hmm. So I Now, think Bina, it is correct. in Andhra Pradesh, the survey is Yes, going sir. on, sir. Yes, sir. Every village wise, they are doing. हाँ, cadastral mapping are there. It is going on. Hmm. ओके, चलिए Okay, देन, okay, sir. थैंक यू Thank you, वेरी sir. मच। सो यू Thank you, गाइस, sir. Thank you. आप लोग इसको ये कर दीजिए, आपके वहाँ उधर से लेफ्ट कीजिए, तो ये बंद हो जाएगा फिर। సార్ ఐ Okay, వాంట్ sir. టు టాక్ Thank you. వినేజీ మీరు హైదరాబాద్ లో చేయట్లేదా తెలంగాణలో సర్వే చేయట్లేదు చేస్తున్నారు కదండి చేస్తున్నారండి. కాకపోతే అంటే అది ఆ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి చేస్తున్నారు సార్. మనకు అంటే మన సైడ్ నుంచి మనం మనం రికార్డ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే మనం అది చేసుకోవచ్చు మనకి ప్రైవేట్ సర్వీస్ బోర్డు మంది ఉంటారు డాట్ సర్వే ఒక ఏకర్కి 2000 అలా తీసుకుంటారు వాళ్ళు మీకు ఎన్ని ఎకర్ అంటే అన్ని ఎకరాలు చేసి ఇచ్చేస్తారు రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటే కోఆర్డినేట్స్ తో సహా ఇచ్చేస్తారు ఆ ఓకే. డ్రాయింగ్ లో మీరు ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మీకు అన్ని కోఆర్డినేట్స్ కూడా వస్తాయి అంటే ఓకే సార్. ఈవినింగ్ వీ హ్యావ్ కోఆర్డినేట్స్ ఎవడెవడో రాళ్ళు మార్చేసినా సరే మళ్ళీ మన కోఆర్డినేట్స్ తో మళ్ళీ మనం పెట్టించుకొని మళ్ళీ వాటితో ఆర్గ్యుమెంట్ చేయాలి బాబు ఇదిరా మనం అని చెప్పుకోవాలి అది అదే అదే అదే. పరిస్థితి సార్ అంటే సార్ ఫిజికల్ గా మనం వెరిఫికేట్ చేసుకోకపోతే వాళ్ళు మార్చేసారంటే మళ్ళీ మనకి Naidu, ఉంటుంది రికార్డ్ Naidu sir, actually now సార్ I can understand because this Telugu language, because I'm a great fan of South film industry. So ఓకే సార్ मूवी देख के मुझे भी कुछ समझ में आ जाता है। థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ దట్స్ ది चलिए, థింగ్ సార్ ठीक है ఓకే సార్ विनय, థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. चलिए आप लोग लिप कर दीजिए, ठीक है। चलो यशीर जी, थैंक यू। థ్యాంక్ యూ సార్